एक वीकेंड का वार हुआ था when Farah Khan had come and she said है कौन बसीर अली. It's just a little disheartening for me कि हमारे इतने बड़े शो की जो मोनिका जी से मैंने शुरू में दोस्ती की थी and things didn't work out. एक वो जो चीज़ है पूरे शो में जो आपका दिमाग चलाती है वो बिग बॉस की आवाज़ है. This season is about रिश्ते. वहाँ पे हो गया सब खराब. Nehal said that you unfollowed her. Yeah. मैंने तो किसी को डिस नहीं किया. मुझे जो बुरा लगा, things are not good on my side. I've seen a few clips. I don't like what I see. My family is also involved. It's the reality. तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं जो बोलना है बोलूँगा. I just want to keep myself away from this drama. Tanya and Neelam body shaming Ashnoor. What's your narrative or point on that? मतलब it's a bit shameful actually. The person who has disappointed you the most. Yeah, I'm a bit disappointed with Nehal and Farhana. One word for this contestant, most fake. Tanya, Shehbaz, Neelam, Amal. I miss them so much. The fight with Praneeth. मेरी फाइट ही नहीं थी वो. मैं अमाल को बुला बुला के कह रहा हूँ अमाल डोंट गेट प्रोवोक्ड और वहाँ से उसने मुझे कुछ कमेंट पास कर दिया प्रणीत ने. Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with someone who is very talented and creative, presenting Basir Ali. Hi Basir, how are you? Hi Jaya, I'm good. Just decent. I was not feeling well for the past few days and just recovering from that. Emotional, dreaming, savage, something, what's happening? I'll be honest. Immediately जब मैं बाहर आया, when I came out, I met my family. I got to check my phone and everything. It was good. It was fine. Yeah. I wasn't feeling the hit. And even the day I did the PR round with Gio and everybody that next Monday, that day also it was like, okay, whatever. But now as days go by, I'm feeling a bit different about my exit. And a lot of things on my head, work-wise, what has gone by, what's coming, and the media, everybody asking me, calling me and saying कि भाई बहुत unfair हुआ आपके साथ, बहुत unfair हुआ. तो now that's adding up. Yes. So I'm kind of feeling a bit weird about it, but ठीक है, because I'm also not feeling well, तो कहीं ज़्यादा ही feel हो रहा है. So, you know, there are very less contestants जिसके लिए ऐसे demand किया जाता है. And you're one of that. No Big Boss, no Basir. No Basir, no Big Boss. We want Basir back. So ये जो प्यार है ना, ये सारे प्यार काफ़ी कम contestant जो हासिल कर पाते हैं. And you're one of that. What do you have to say on that? देखिए ये अपने आप में एक जीत है मेरे लिए. This is exactly what I call people's champ. क्योंकि अभी भी शो चल रहा है. लोग देखने वाले देख रहे हैं and all that. But जो audience हमें support करी थी all over the social media, everywhere, voting for me, making these trends happen, Twitter, Instagram, यही तो एक विनर को मिलता है. एक विनर को जीत तो चलो ट्रॉफी थोड़े पैसे मिल गए, वो एक गेम शो खत्म करने के लिए आपको मिलता है. बट व्हाट आर यू एक्चुअली देयर फॉर? यू आर देयर फॉर योर ऑडियंस, यू आर देयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इवन फॉर द पीपल जो आपको जानते नहीं बट आप चाहते कि ये मुझे जाने. आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था. वो एक वीकेंड का वार हुआ था व्हेन फराह खान हैड कम एंड शी सेड है कौन बसीर अली, कौन जानता है ऐसे. अब जवाब मिल गया होगा. हर जगह पे यही चल रहा है, बसीर कौन है, कहाँ से आया है. मेरी ऑडियंस तो 2017 से मेरे साथ जुड़ी हुई थी, बट बिग बॉस के जरिए मुझे और भी ज़्यादा ऑडियंस मिली है. थैंक्स टू माय एक्टिंग शो पहले जो मैंने कुंडली भाग्य भी किया था, उसमें मुझे एक बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस मिली. और जो क्वेश्चन आपने पूछा है जया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर मी, बिकॉज जीतने के बगैर भी आपको इतना प्यार मिलना और ये कहना लोगों का, ऑडियंसेस जो देख रहे हैं कि इसको वापस लाओ, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी. क्योंकि ऐसा रोज रोज नहीं होता. True. बिल्कुल. You know, I was watching last night's episode and live देख रही थी मैं. उसमें भी कई comments थे जो आपके लिए ही थे. Basir, please we want Basir. And I was seeing live yesterday and I was like कि भाई कुछ तो करो. You know, जितनी भी मैंने दुनिया के मतलब आउट ऑफ इंडिया रियलिटी शोज देखे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, कुछ यूएस में, कुछ दुबई में. सो एवरीवेयर पीपल हैव सेड, जब ऑडियंस सोशल मीडिया पे आके आवाज़ उठाती है कि हमें ऐसा, यू नो, वी वांट दिस कंटेस्टेंट बैक और वी वांट यू, द फीडबैक इज टेकन. इट्स जस्ट अ लिटिल डिसहार्टनिंग फॉर मी कि हमारे इतने बड़े शो की जो शो मेकर्स हैं, जो चैनल हैं, जो लोग हैं, वो लोग ऑडियंस को सुन ही नहीं रहे. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे अंदर ले आओ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी गोइंग बैक इन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिसनिंग टू योर ओन ऑडियंस, सीइंग एंड हियरिंग देम कि भाई चाहते क्या है, उस हिसाब से अपना शो चलाओ. क्योंकि आप बना तो ऑडियंस के लिए रहे हो ना.
not for sponsors, not for your personal gain, nothing. You're making a show because the audience should love it. And if the audience is saying this, why is it not getting through? True. थोड़ा disappointing है. Absolutely. You know, you had carved your own niche and सब कुछ आपने खुद अपने दम पे बनाया है, ठीक है, किसी का हेल्प नहीं लिया है. I really want to ask you, you came from Hyderabad here and MTVs में गए, Splitsvilla जीता, अपना नाम बनाया, TV सीरियल्स किया, then Big Boss. You know, कुछ अलग था Big Boss की, यार इसके लिए कुछ और स्ट्रैटेजी चाहिए था जो वर्क नहीं कर पाया? वहाँ रहते रहते मुझे कुछ समझ आया था कि ये गेम मोर देन परफॉर्मेंसेज और पर्सनालिटी, इट्स अबाउट डिप्लोमेसी. आपको डिप्लोमेटिक रहना बहुत ज़रूरी है. और ये साल जो ये डेमोक्रेसी का जो खेल खेला गया है हमारे साथ, ये जो आपकी सरकार, घर वालों की सरकार बोल बोल के हमें जो पेड़ा खिलाया गया है, आई थिंक वो मेरे लिए सही नहीं था. दैट वाज नॉट माय काइंड ऑफ अ सीजन. बट या आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. एंड मैं अपने आप को बहुत बुरा दोस्त मानता था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आउट ऑफ रियलिटी शोज मैंने बहुत सुना है ये कि यू नॉट अ गुड फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, पीपल हु गेट हर्ट बाय मी एंड ऑल. तो मेरे दिमाग में वो बैठ चुका था कि आई प्रॉब्ली आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड. बट ये करके जो आया हूँ मैं, अब मुझे पता है कि मैं तो दोस्त अच्छा हूँ, बट मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं मुझे नहीं पता. I can vouch for myself. No, Vaseer, you were a good friend inside. I will say this, and we were seeing the whole episodes. तो वहाँ मैं तो ये कहूँगी you were a good friend though. कहीं ना कहीं उसी चक्कर में बाहर हो गया मैं, दोस्ती निभाते. But Vaseer, you know, जहाँ पे मैंने देखा है कई लोगों का perception था आपके लिए कि ये Vaseer was that contestant जो top 5 में तो था हमारे हिसाब से. उसकी गेम जो थी वो काफ़ी strong थी, but बीच में आकर वो slow down हो गया. Do you think this is correct? It's true. क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एवरी डे आई वाज फीलिंग एट माई 100. ठीक है, कुछ 4 वीक्स के बाद, स्पेशली आफ्टर जीशान कादरी लेफ्ट, जब वो गए तो उनके बाद मुझे लगा कि दोस्ती नहीं है यार इधर. तो मतलब मेरे लिए एक बंदा खड़ा होता था, वो मुझे पता है अमाल भी फ्रेंड है, शहबाज भी फ्रेंड है, बट उनकी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे में ही बिजी है. नीलम तानिया का सपोर्ट देगी, तानिया नीलम का देगी, शहबाज अमाल, अमाल शहबाज. बच्चे कौन थे? नेहल फराना एक दूसरे को दे रहे हैं, अभिषेक अशनूर एक दूसरे को कर रहे हैं, गौरव मृदुल एक दूसरे को कर रहे हैं. बच्चे कौन? कुनिका जी से मैंने शुरू में दोस्ती की थी एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट. तो कहीं ना कहीं बार बार आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब आप एक बिग बॉस जैसे घर में बंद हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पर्सनल इंटरेक्शन किसी बाहर वाले से होता नहीं है, जो भी आवाज़ें आती है कंटेस्टेंट्स की, और एक वो जो चीज़ है पूरे शो में जो आपका दिमाग चलाती है, वो बिग बॉस की आवाज़ है. तो जब भी बिग बॉस आते थे, कुछ भी बोलते थे, तो हम उसमें से हिंट्स निकालने की कोशिश करते थे कि ये बोलने का मतलब क्या था, ये वर्ड क्यों यूज़ किया होगा, ये वो. तो जब मेरे कानों तक ये बात पड़ी कि ये शो इस सीज़न को, दिस सीज़न इज़ अबाउट रिश्ते, वहाँ पे हो गया सब खराब. तो मैं ना अपनी गेम को साइड में रख के मैं रिश्ते बनाने में बिजी हो गया. एंड टुवर्ड्स दी एंड शायद वही दिखाया जा रहा था. बट देखिए, ये भी सच नहीं है कि हम 24 घंटे एक ही इंसान के साथ पड़े होंगे. जैसे मुझे सिर्फ नेहल के साथ दिखाया जा रहा था, या नेहल भी मेरे साथ ही, ऐसा थोड़ी था. मेरे और भी फ्रेंड्स थे, हम बहुत मस्ती करते थे. मी, नीलम, शहबाज, अमाल वाज नॉट वेल द लास्ट वीक. तो कहीं ना कहीं हम लोग ने अपना किया, बट दिखाया वही गया जो उतना शायद फन नहीं था. बट ऑन द होल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मेरी गेम थोड़ी इधर उधर हो गई लास्ट वीक में, बट ठीक है. जैसे हम आपको टॉप 5 में देख रहे थे, आप भी अपने आप को टॉप 5 पे देख रहे थे? टॉप 2 100%. मैं अपना हाथ सलमान सर के हाथ में ऐसे लेके खड़ा था अपने दिमाग में, तो कि बस अब विनर ये होगा या ये होगा. Then I'm sure it we are very emotional when you came out for you. Honestly, I was a bit upset more than emotional because it was like ये मेरे साथ हो गया. I'm like अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा था. जब तक घर आया, मॉम के साथ बैठा, फ़ोन देखा, इंस्टाग्राम देखा, तब तक भी I was a bit in disbelief. फिर अब जाके थोड़ा बेटर हो गया अभी. Nehal said that you unfollowed her. Yeah. Was that a thing? Something went wrong? यार, like I said in the other interview as well, कि मैंने तो किसी को डिस नहीं किया. मुझे जो बुरा लगा मैंने उनको भी जाहिर किया. उस दिन हमारा PR राउंड था, 5 मिनट के लिए नेहल और मैं नीचे पार्किंग में मिल गए थे. In those 5 minutes, Jaya, I told her clearly that things are not good on my side. I've seen a few clips. I don't like what I see. My family is also involved. And you have said and done things behind my back that I don't like. तो अभी तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है. और because she was feeling कि शायद मीडिया राउंड में स्टोरीज ऑफ जा रही है. मैंने कहा इट्स द रियलिटी. तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं जो बोलना है बोलूँगा. आई जस्ट वांट टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस ड्रामा. और उसके बाद उन्होंने जाके अपनी स्टोरीज पे कुछ फैंस के राइटअप्स शेयर किए, फिर खुद की भी टिप्पणी दी नीचे कि आई एग्री विद देम, नोबडी हैज सेड इट बेटर. मैंने कहा ये मैं नहीं ले रहा भाई. आई डोंट वांट टू सी दीज bullshit stories about me करके मैंने सीधा अनफॉलो कर दिया. Anyways, but what's up these days? What you're doing these days and what are lineups? कुछ नज़ालिया के साथ भी देख रहे हैं आपको, कुछ म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं क्या?
नताली इज़ अ गुड फ्रेंड, शुरुआत से अच्छी दोस्ती रही है। वो भी बहुत ही बिजी इंसान है। जब देखता हूँ बेचारी कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे शूट पे होती है, रात को 10 बजे आके खा के सो जाती है, तो उतनी मुलाकात भी नहीं हो रही। 2-3 बार मिले हम। जीशान भाई से भी मुलाकात हुई काम के रिलेटेड। आप तो देख ही रहे होंगे स्पेकुलेशंस में, नागिन 7 दे दिया गया है मुझे, ये किया है वो किया है। आज सुबह मैंने देखा करण जौहर has signed बसीर अली in his upcoming film। मैंने कहा वाओ ये कब हो गया, मैं सो के ही उठा हूँ अभी। बट नथिंग लाइक दैट, बट येस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हिट्स फ्रॉम ग्रेट प्रोडक्शन हाउसेज, गुड चैनल्स। मैं नाम लूंगा तो फिर वही हो जाएगा कि अरे वो पूछा था वो हुआ क्यों नहीं। जब कुछ सॉलिड हो जाएगा इंशाल्लाह तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। बट फैशन डिजाइनर से बात हुई आकर बाहर? यार आप लोगों को पता है एक्चुअली जो मेरे लिए जिस टाइप के आउटफिट्स हम डिज़ाइन करके गए थे, जब मेरे पे सवाल उठने लगे वहाँ पे मेरे कपड़ों को लेकर, मस्तियाँ होने लगी, तो मेरी फैमिली बाहर थोड़ी सी बॉदर हो गई इस चीज़ को लेकर। अच्छा। तो उन्होंने वैसे सारे एक्स्ट्रावेगेंट फ्लैम्बॉयंट कपड़े हटा के बहुत ही बेसिक्स भेजने शुरू किए। अब वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, कम्युनिकेशन था नहीं फैमिली के साथ। बट आई वुड हैव रादर वोन द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स। यार मुझे अच्छा लगता है तभी मैं पहन रहा हूँ, मैं कैरी कर सकता हूँ तभी मैंने वो चीज़ों को प्लेस किया एज एन ऑर्डर। और मेरी टीम जो स्टाइलिस्ट थे, सब कुछ फैशन गेम हमारा जितना अप रखना था हमने किया, बट थोड़ा सा मेरी मॉम इन्वॉल्व होकर उन्होंने डिमिनिश कर दिया। जैसे कि हम देख रहे थे कि जिशान सर ने भी मुझे कहा कि यू नो मैं बस और बस बाहर आकर एक ही इंसान के साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, वो है बसीर अली, क्योंकि मुझे सबने धोखा दिया और उन्होंने मुझे खोया है, मैंने नहीं किसी को खोया है। ये खुद में, एंड आई थिंक यू वर ऑल्सो वेरी लॉयल टू हिम। तो आने के बाद अमाल वाज ऑल्सो योर फ्रेंड है, कुछ चीज़ें चेंज हुई, कुछ चीज़ें देखी आपने, कुछ चीज़ सुनी, तो आपका परसेप्शन चेंज हुआ? परसेप्शन देखिए, वहाँ रहते हुए भी 24 घंटे हम लोगों को ऑब्जर्व ही करते रहते हैं, दैट्स द होल गेम। अमाल को जितना मेरे सामने देखा मैंने, आई रियली रियली लाइक हिम, हम लोग की एक वाइब है, बॉन्डिंग है एंड ऑल दैट। बट अमाल का एक ड्रॉबैक ये है कि वो पीछे जाके कुछ भी बोल देते हैं किसी के भी। जैसे अगर हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हमने बोल दिया भाई अपन दोनों ही हैं, जो भी है सबकी वाट लगा देंगे। मैं चला गया और नीलोफर आके यहाँ बैठ जाएंगे अगर, तो सेम डायलॉग नीलोफर को भी बोलेंगे कि अपन दोनों हैं, जो भी है इन सब की माँ बहन कर देंगे। सो द सेम फ्रेंडशिप दैट ही वाज ऑफरिंग टू मी एंड जीशान भाई, शायद वो और भी जगह ऑफर कर रहे थे। आई थिंक इट्स हिज गेम प्ले, आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। बट कुछ कुछ क्लिप्स हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो देख के थोड़ा दिल दुखा है मेरा। बट आई थिंक वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शो है, डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, जो हो रहा है होने दो। बाहर आने के बाद अगर मैच्योरिटी से आप हैंडल कर सकते हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। फरहाना वाज इमोशनल फॉर यू एज वेल, है ना? You don't want I think you said somewhere that कि she taught you the prayers. She didn't teach me how to pray. हाँ. वो पढ़ना शुरू की हाँ. एक दिन, तो मैंने देखा उसको फॉलो किया, then she went to pray। तो मैंने देखा अरे नमाज यहाँ पढ़ रही है, तो मतलब मैं भी जाने नमाज लेके आया हूँ, मुझे भी पढ़ना है। मम्मी ने बोल के भेजा था कि जितना हो सका पढ़ना। तो उसको देख के वो क्लिक हुआ मुझे कि जब वो भी ये सब डिफिकल्ट सिचुएशंस में, हालांकि उन दिनों में उसके ऊपर पूरा घर बरस रहा था, तो वो नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने देखा यार मैं भी तो पढ़ सकता हूँ। तो मैंने अपना स्पॉट ढूंढा बेडरूम में, एंड उसको देख के मुझे क्लिक हुआ कि अरे मैं भी पढ़ना शुरू कर सकता हूँ, अपना टाइम है स्केड्यूल में। राइट, बट यू नो हाउ डू डिस्क्राइब योर जर्नी बसीर? यहाँ से यहाँ तक आना खुद में एक डिफ़िकल्ट जर्नी होता है, मुंबई में अपनी जगह बनाना, हाउ डू यू सी दिस? देखिए मेरा ख्वाब नहीं बोल सकता मैं, बट मेरा नज़रिया बड़ा है, हमेशा से नज़रिया बड़ा रहा। ख्वाब मैं बहुत कम देखता हूँ। और नो रोल मॉडल्स, नो बैकअप, नो आइकन्स और आइडल्स हेल्पिंग यू आउट। रोडीज़ भी मैं अपने घर से कुछ उधार मम्मी से लेके मैं गया था अहमदाबाद ऑडिशन के लिए। उस ज़माने में जब डिमोनेटाइजेशन चल रहा था, 2016 नवंबर 16, तो हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन साइज चल रहे थे, तो वहाँ पे रोज़ आपको दिहाड़ी देनी होती है ना, कैश पे ही काम वालों को पैसे देने होते हैं। तो मॉम का जितना इनफ्लो आ रहा था पूरा आउटफ्लो काम पे लग रहा था। तो अब मैंने कहा मॉम मुझे रोडीज़ के ऑडिशन के लिए जाना है। मैं मॉम से गेट लॉस्ट, जाए यहाँ से हट। एंड देन मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा देखिए आप कब से कह रहे हैं कुछ जॉब कर लो, बिकॉज मेरा कॉलेज अभी हुआ ही था, MBA के लिए मुझे बाहर जाना था। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं काम करता हूँ, आप मुझे इतने पैसे उधार दो, कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आके जॉब करके मैं वापस भी कर दूंगा। तो बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे रोडीज़ के लिए भी जाने मिला। आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, रोडीज़ ऑडिशन, स्प्लिट्सविला, एस, कुंडली, ऑल ऑफ इट। इवन माई फैमिली सेज कि साला तूने इतना अच्छे से कर लिया सब कुछ, हम बोल भी नहीं सकते कि हमें क्रेडिट दे। तो आई एम ग्लैड कि इट वाज अ गुड जर्नी। और अकेला तो कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाले के साथ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो नसीब है, फिर दूसरे कर्म है, और फिर मेहनत है। तो ये 3 चीज़ों से मेरी कहानी चलती रही है बस। बट व्हेन यू से यू डोंट हैव एन आइडियल, ठीक है, बट यू नो कहीं ना कहीं किसी के मतलब हम सब देखें किसी ना किसी का वेव हम फॉलो करते आए हैं। तो
उस सिचुएशन में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार कोई तो होता है जिसको मैं फॉलो करता, या कोई तो होता मुझे बताने के लिए या हेल्प करने के लिए इंडस्ट्री एज में? सच जब मैं रोडीज पे आया था तभी से मुझे रणसर मिले, रणविजय सर, रणविजय एंड हिम एंड प्रिंस भाई हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू मी. और वन ऑफ माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड निखिल चिनप्पा, जो मुझे रोडीज पे ही मिले. तो जब हमारे शोज खत्म हुए और हम बाहर आए, इन्होंने हमेशा दोस्ती निभाई है. Right. कुछ भी एडवाइसेस चाहिए होते थे, मैं इन तीनों में से किसी को भी फ़ोन करता, एट एनी पॉइंट ऑफ द डे दे वुड ऑलवेज हेल्प मी आउट. शो शुरू होने से पहले जब मैं बिग बॉस जा रहा हूँ करके न्यूज़ फैल गई थी, तो रन सर का कॉल आया, प्रिंस भाई का कॉल आया, निखिल सर का कॉल आया. सो एवरीबडी जिसको मैं मानता हूँ, मैंने तो रन सर को गॉड फादर भी बोला था अपना. तो ये लोग तो बस आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दे आर देयर फॉर यू बैकअप में, बट करना तो सब कुछ आपको ही है. दैट्स द कैच. एंड आई थिंक जितने भी हैं, जो भी हैं, आई एम ग्लैड विद द पीपल आई हैव इन लाइफ. अच्छे रहें. Right, right. We'll quickly play a game and we'll wrap it up. If your journey in the house had a little, what would it be and why? Had a title. A title. Yeah. I think it would be called Ek Villain. I don't know why people are so constantly running behind making me the villain. मैं पिछले कुछ shows में भी they made me look like the bad guy. I can be the bad guy, because you need a guy like me to point a finger and say that's the bad guy. But actually, I am a good person as well. That's why I have so many people who love me, my friends and family. Yeah. But the title has to be villain. Ek villain. You know, your bond with Amal, Jishan, whoever you bonded with, has spoken a lot about it. Was it a real or emotional or situational? ये तो वही बता पाएंगे honestly. Whenever I was sitting in front of them और हमारी बात होती तो प्यार, तारीफ, compliments, support, motivation, यही देते थे एक दूसरे को. But अब कितने लोग ये कैमरा के लिए कर रहे थे, कितने लोग सच में ये फील कर रहे थे, ये तो वक्त ही बताएगा. जो लोग इतने दिन वहाँ फेक कर सकते हैं, तो क्या बाहर आके भी थोड़ा बहुत फेक ही कर सकते हैं. वहाँ तो 24 घंटे साथ रहना था. यहाँ पे तो 24 घंटे भी नहीं है साथ. तो जितनी देर मिलते हैं सब अब गुडी गुडी रहते हैं, फिर the moment people go back home it's different. True, true. But recently we saw Tanya and Neelam body shaming Ashnoor. What's your narrative or point on that? It's a bit shameless, मतलब it's a bit shameful actually. उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो खुद लड़कियां हैं पहले तो. फिर दूसरी लड़की के बारे में आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐसा बोल रहे हो, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना ज़रूरी है. अशनूर ऑन द अदर साइड हैज़ हैंडल्ड इट रियली वेल. वो बहुत ही काम लड़की है, बहुत ही कंपोजर उसका बहुत मेंटेन्ड होता है. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू अशनूर फॉर हैंडलिंग इट, बट अ लिटिल शेम ऑन दीज गाइज जिन्होंने लड़की होते हुए भी ये सब मेंशन किया. क्योंकि हमको पता है वहाँ पे हमने खुद बकवास की है अंदर. हर चीज़ टीवी पे नहीं आती. हमने किसी को कुछ बोल दिया. बट जब ये मुद्दा टीवी पे आ गया है, उसको आपको ओन भी करना है, एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज भी करना है. वो सब मुझे दिखा नहीं. तानिया वाज ऑलवेज डिनाइंग कि मैंने ऐसे बोला नहीं है. तो सेकंड पर्सन जो भी था उसने भी बोला नहीं है. तो थोड़ा सा हमको तो दिख गया है किसने क्या बोला है. उनको अपनी इमेज के बारे में भी सोचना चाहिए. According to you, who is just performing for the cameras? GK and Tanya. If I ask you one name, the person who is disappointed you the most, who comes mind instantly? Who comes to my mind? Yeah. जिसने मुझे क्या किया, काम. जिसने आपको disappoint किया है. हाँ. Disappointment will always come from friends. And yeah, I'm a bit disappointed with Nehal and Farhana. Okay. Yeah. We saw alliances shift overnight. Do friendship here survive outside the Big Boss house or not? कुछ दोस्तियां तो रहेंगी. जितना मैं देख के आया अंदर से, जैसे वो दूसरा ग्रुप है, GK, मृदुल, अभिषेक और GK का भी एक नया एंगल दिखने को मिल रहा है. आई डोंट नो इफ दे रियली लाइक ईच अदर और नो. थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया. डज नॉट ना. वही थोड़ा मैं जो भी इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है, GK इज शटिंग द डोर. इज लाइक क्यों नहीं बैठ सकते. ये दोस्तियां मैं कह रहा हूँ, शहबाज, नीलम, अमाल, मैं, हम लोग आपको दिखेंगे बाहर. हमारे बहुत प्लान्स बने हुए हैं. बॉम्बे रह गए, हमें बहुत तमाशे कर रहे हैं. नीलम को मैं बहुत मिस करता हूँ, जेन्युइनली बहुत मिस करता हूँ. शहबाज, नीलम, अमाल, आई मिस देम सो मच. इस बार एविक्टेड. आज तो मेरे ख्वाब में भी फरहाना आई है. बताओ, आज मैं उठा, मैंने कहा घर पे हूँ यार. फरहाना घूम रही थी मेरे पीछे डांटते हुए. कुछ तो लड़ाई चल रही थी. मैंने कहा फरहाना छोड़ना यार. There's a narrative that you were targeted in the house. Do you feel the environment was biased or it was your gameplay? It is something that I've lived as Basir ना. 30 years मैं अपने आप में रहा हूँ. Like I've lived as this guy. ये हर जगह हुआ है मेरे साथ. मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ, कॉलेज वालों को मेरे से इशू हो जाता है. क्लास में तो हो गए लोग.
मैं कोई रियलिटी शो पे जाऊँ, पहले ही हफ्ते में नैरेटिव निकल जाता है, इसको तो जिताने लाए हैं, इसको तो सपोर्ट कर रहे हैं और तो मैं झंडे पे बहुत जल्दी आ जाता हूँ। ज़िंदगी में मैंने ये बहुत बचपन से देखा है। तो या आई थिंक वेदर यू लाइक इट और नॉट, सम पीपल आर गोना फाइंड यू इंटिमिडेटिंग एंड इट्स देयर वीकनेस, मे बी माई स्ट्रेंथ। एक क्लिप देखा मैंने जहाँ पे कोनिका जी ने बोला था मुझे नॉमिनेशंस के टाइम, ये सिर्फ अपनी बॉडी और इसकी आवाज़ों से इंटिमिडेट करता है लोगों को। मैं कहा भाई मैं तो क्यूट हूँ, मैं कहा इंटिमिडेट करता हूँ लोग। No, you used to, roam around the house without t-shirts and Yes, something like yes. that. The people were talking on that also, I remember. मजे लो, आगे बढ़ो यार, क्या चाहिए। Some fans felt you were not given enough footage. Do you think screen time affected how the audience perceived you? 100%, क्योंकि लास्ट के कुछ हफ्तों में शायद मुझे दिखाया ज़्यादा नहीं गया है। और आप सोचिए घर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे आप बैठ के छुप सकते हो, आप कहीं भी हो दिखोगे, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। सोता नहीं था मैं आज तक, मतलब 63 डेज जब तक मैं घर में था, एक बार भी मैंने कुकड़ू नहीं बजवाया है। Yes. मैं कभी दिन में टाइम वेस्ट करते हुए लोगों की तरह काम चोरी नहीं करता था, मैं एक्स्ट्रा काम करता था। मेरी चॉपिंग से हट के मैं कभी काउंटर क्लीन कर देता था, फ्रूट्स काट देता था, लिविंग रूम तो ऐसा साफ करता था जैसे मेरा खुद का घर है, क्योंकि मेरे को है वो। तो आई हैव बिन डूइंग अ लॉट। आई नो कि मैं बोर होने वालों में से नहीं हूँ, ना ही बोर करने वालों में से हूँ। बट अगर शो पे कहानियाँ चल रही हैं और उनको वही कहानी को कंटिन्यू करना है, तो वो एक ही हिस्से के एलिमेंट्स खींचते रहेंगे। जब बसीर नेहल के साथ हो या बसीर अमाल के साथ हो, वही वाले स्टोरी को आप खींचे जा रहे हैं। मेन चीज़ें जो एक्स्ट्रा भी हो रही थी उसको दिखाया नहीं, शायद वो एपिसोड में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। True, true. There were heated arguments. Looking back, is there one moment you regret or wish you should हैंडल इट बेटर। differently? Yeah. क्वाइट अ फ्यू थिंग्स एक्चुअली। मुझे कुनिका जी से लड़के कभी अच्छा नहीं लगा। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मुझे कैसे फील होता था आफ्टर फाइटिंग, क्योंकि फाइट तो होनी है। जैसे मैं अपनी मॉम से भी लड़ लेता था बचपन में, 16, 17, 18, 19, घमासान युद्ध हो जाता था हमारे घर में भी। बट आई नेवर हैड अ गुड फीलिंग अबाउट इट। आई ऑलवेज हैड सम डीप डाउन एक दर्द होता था मुझे। सेम फीलिंग कुनिका जी के लिए भी आती थी कि यार आई नो शी मीन्स वेल फॉर एवरीबडी, वो भी खेल रही हैं। कभी कभी अलाइन नहीं होता था तो उनसे लड़ाइयाँ होती थी। दैट्स वन लड़ाई कुनिका जी के साथ जो मैंने बेडरूम में लड़ी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरी आई थिंक द फाइट विद प्रणीत, मेरी फाइट ही नहीं थी वो। मैं अमाल को बुला बुला के कह रहा हूँ, अमाल डोंट गेट प्रोवोक्ड, डोंट गेट प्रोवोक्ड, और वहाँ से उसने मुझे कुछ कमेंट पास कर दिया प्रणीत ने। तो फिर इट बिकेम मी वर्सेस हिम। उससे आप पता नहीं वो टीवी पे आया नहीं है, 5 सेकंड पहले बिफोर प्रणीत कम्स एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू अमाल, मैं स्मोकिंग जोन से प्रणीत को बोला, प्रणीत नेक्स्ट टाइम आपको लड़ाई रोकनी है, आप अपने दोस्त को हाथ लगाएं, उसको पीछे करें, मुझे टच मत करना, दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। हाँ ठीक है बोल के ही स्टार्टेड फाइटिंग विद दिस गाय। तो मैंने अपने दोस्त का सपोर्ट दिया। वो मुझे लगा अननेसेसरी फाइट हुआ उसमें, मैंने वो विलेज ये वो बोल दिया। उसका भी मतलब बड़ा सिंपल था। आई जस्ट सेड इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फैशन, दिस पर्सनैलिटी, दिस एक्सेंट और एनीथिंग दैट डजंट गो विथ यू, प्लीज गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। दैट्स अ विलेज टाइप। तो उसको बना दिया फार्मर्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, विलेज क्या लोग नहीं होते। मैंने कहा भाई जो बोलना है वो बोल दिया मैंने, अब आप उसका एक मसाला लगा के नए तरीके से बेचोगे तो वो बिकेगा ही। आई डिडंट लाइक दैट। बहुत चीज़ें थी ऐसी तो, बट दीज टू सिचुएशंस आई रियली डिडंट लाइक। You were shown quite protective as well in this show, but to your friends. One word for this contestant: most fake, तानिया। most real, कुनिका जी। most entertaining, शबाज। most unpredictable. फरहाना। Of course. Kaleshi, कलेशी है जीके। gossip queen, तानिया। someone who doesn't know the game but still going on. मालती, of course. Malti chair, are you listening to this? Someone who should get evicted in place of you. Could be anybody यार. I don't think like anyone जो गेम में अच्छा नहीं कर रहे थे. I feel like सबको निकाल दो मेरी जगह पे, मैं ही रह जाऊँ. But if I had to take one name, I think प्रणीत. मुझे नहीं लगता कि वो, चलो दोस्तियाँ अच्छी निभा रहे हो आप, सब कुछ कर रहे हो, बट आपका शो पे क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसा आपने शो पे क्या कर दिया जो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि भाई ये बंदे ने आग लगाई थी. आई फील लाइक ऐसे तो सिर्फ प्रणीत नहीं, बहुत भी नाम है, बट डायरेक्टली इफ यू सी प्रणीत शुड हैव लेफ्ट इंस्टेड ऑफ मी दैट वीक, नेक्स्ट वीक मैं भी आ जाता तो पता नहीं क्या होता. After coming from the house, you miss the most. One thing you miss the most about the house. The people, the friends, Right. definitely. I miss my equations. एक आदत सी हो जाती है यार, आप 2 महीने उनके साथ सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लड़ रहे हो, टास्क कर रहे हो. तो जिन लोगों को मैंने दिल से चाहा वो तो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे. चलो ठीक है, जीशान भाई, नतालिया आर आउट,
बाकी दो से तो लेना देना है नहीं मेरा। और बचे फरहाना, अमाल, शहबाज, नीलम, मिस करता हूँ मैं इनको। One advice you're gonna give someone who's your friend who's entering Big Boss next year. भाई कुछ भी प्लान करके मत जाना अपने दिमाग से, तुम जो चाहोगे वो तो घंटा नहीं होगा, जो वो चाहते वो होके ही रहेगा। सो बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। According to you, who are the top 5? किसको भी ले लो, ऑल माय फ्रेंड्स आई वांट टू पुट देयर, आई वांट टू पुट शहबाज, अमाल, नीलम, फरहाना एंड बचे कौन, कुनिका जी, कुनिका जी फॉर श्योर। ये मेरी पसंद वाले टॉप 5। ऑनेस्टली मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि किस तरीके से टॉप 5 सेलेक्ट होंगे, नो आइडिया। द शो इज़ अ लिटिल हेवायर राइट नाउ, इसलिए मैं देख भी नहीं रहा। Basir, you know, fans loved you, we loved you, and I hope only you do better things in your life. Inshallah. Good luck and good wishes all for all your upcoming projects. Thank you so much for talking to me. It was lovely conversation with you. Same here. Thank you. you. Cut.